Dear 10th class students, this is the video for you. In this video, I am going to solve question from exercise 3.5. Here given question number 8. लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. दिस इज एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर 8. Given equation b by ax plus a by by equal a square plus b square equal a square plus b square and x plus y equal 2a. ये लीनियर इक्वेशंस पेयर गिवन हैं और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. बी में राइट given equations as b by ax plus a by by since ये रैखिक समीकरण युग्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. सो यहाँ RHS में जो टर्म है उसे LHS में ट्रांसफर करते हैं. माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वी may write as x plus y minus 2ab equal 0. Second equation. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लीनियर इक्वेशन पेयर का लीनियर इक्वेशन पेयर के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. और कंपेयर करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम फर्स्ट वेरिएबल को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में y के कोएफिशिएंट से जो कॉलम रिप्रेजेंट होता है उसे नोट करते हैं. a by b 1 here minus a square plus b square minus 2ab minus 2ab equal y divided by सेकेंड वेरिएबल y को न्यूमरेटर में लिखते हैं और इसके डिनोमिनेटर में माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इस कॉलम के बाद अब x के कोएफिशिएंट से जो कॉलम मिल रहा है b by a
1 इक्वल कांस्टेंट के लिए 1 यूज करते हैं न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम b बाई ए 1, y के कोएफिशिएंट से कॉलम a बाई b 1। Here do cross multiply we may write here x divided by a by b into minus 2ab minus a by b into 2ab. Here a by b into 2ab, this sign plus sign, this minus, so here negative sign a by b into 2ab minus a square plus b square is equal to y divided by same, here we may write minus a square plus b square plus 2ab into b by a plus 2ab into b by a. Here a and a cancel. Next 1 by b by a minus a by b, b by a minus a by b. Next simplify this. We may write here x divided by, here b and b cancel, minus a into 2a minus 2a square and minus plus a, here minus into, here make curly bracket, minus into a square plus b square, so minus and minus plus a square plus b square equal y divided by minus a square minus b square and this 2b into b will be 2b square plus 2b square equal 1 divided by b square minus a square, b square minus a square divided by ab. Next we may write here x divided by b square minus a square, here minus 2a square plus a square will be minus a square, so we may write here b square minus a square equal y divided by b square minus a square, 2b square minus b square, b square minus a square equal ab divided by b square minus a square. So
we get here x equal b square minus a square into ab divided by b square minus a square and y equal ab divided by b square minus a square into b square minus a square. Here b square and b square minus a square cancel, and here this cancel. So we get here x equal ab and y equal also ab. This is answer. Next, question number 9. Here also given linear equation pair and solving by cross multiplication method. Same as I solved question number 8. Here question number 9 given 2 into ax minus by equal minus a minus 4b. I write given equation. This is question number 9. 2 into ax minus by equal minus a minus 4b, and second equation given 2bx plus ay equal minus b plus 4a, minus b plus 4a. We may write given equation pair as 2ax minus 2by plus a plus 4b, and this 2bx plus 2ay plus b minus 4a. This equal to 0 and this also equal to 0. This is first equation and this is second equation. Here comparing equation first and second with capital A1x plus capital B1y plus capital C1 and capital A2x plus capital B2y plus capital C2 equal 0. Find value capital A1, capital B1, capital C1. Here capital A1 equal to A. Since here given small a, so here suppose capital A1 equal to A, capital B1 equal minus 2b, and capital C1 equal a plus 4b, and capital A2 equal to b, capital
b2 equal to a, capital C2 equal b minus 4a. Next, by cross multiplication method, we may write here x divided by x के कोएफिशिएंट a1 a2 से जो कॉलम रिप्रेजेंट होता है इसे नहीं लिखेंगे, माइनस 2b 2a माइनस 2b 2a एंड कांस्टेंट से कॉलम c1 c2 a plus 4b and b minus 4a equal y divided by y के कोएफिशिएंट b1 b2 से रिप्रेजेंट कॉलम नहीं लिखना है, कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कॉलम a plus 4b b minus 4a. After this, x के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम a1 a2 2a 2b 2a 2b equal 1 by x के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम here 2a 2b and y के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम b1 b2 minus 2b 2a minus 2b 2a. Here we do cross multiply. Next क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट। यहाँ भी सेम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और प्रत्येक दो गुणनफल के मध्य जो आते हैं माइनस साइन यूज करेंगे। दिस वी मे राइट एज x डिवाइड बाय minus 2b square multiply by minus 2b in b minus 2b square plus 8ab 8ab minus here multiply by 2a square plus 8ab 8ab equal here we may write y divided by 2ab 2a 2b into a will be 2ab plus 8b square minus multiply by 2a in b and minus 4a we get 2ab minus 8a square 8a square is equal to 1 divided by here 4a square plus 4b square 4b square. Understand this step. Next, by simplifying this, we may write here x divided by minus 2b square
plus 8ab, here minus 2a square minus 8ab is equal to y divided by here 2ab plus 8b square minus 2ab plus 8a square equal 1 divided by 4 into a square plus b square. You are seeing here 8ab cancel. Here we take common minus 2, then we may write here x divided by minus 2 a square plus b square equal y divided by here 2ab and 2ab cancel. We take common 8, we may write a square plus b square is equal to 1 divided by this 4a square plus b square. So we get easily value of x and y. We may write x equal minus 2 a square plus b square divided by 4 a square plus b square and y equal 8a square plus b square divided by 4a square plus b square. Here this cancel, 4 2 is 8, so y will be 2 and here a square plus b square cancel, 2 2 is 4, so this will be minus 1 by 2 and y equal 2. So we get the value of x equal minus 1 by 2 and value of y equal 2. This is answer. Next you see question number 11. Question number 11 is given here. AXYB minus B YYA equal A plus B and AX minus BY equal 2AB. Question number 11. Given equation AX by B minus BY by A equal given A plus B and second equation is given AX minus BY equal 2AB. We may write given equation as A by B into X minus B by A into Y minus A plus B equal 0. This is first equation and AX minus BY
minus 2ab equal 0. This is second equation. अब पहले ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन पेयर से और वैल्यू कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 और कैपिटल A2, कैपिटल B2, कैपिटल C2 की फाइंड करनी है और इसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड we may write here x divided by minus b by a minus b and minus a plus b minus 2ab equal y divided by minus a plus b minus 2ab and a by b equal 1 divided by a by b and minus b by a minus b by a minus b. Here do cross multiply. We may write this x divided by minus b by a into minus 2ab will be plus b by a into 2ab. Here minus and minus plus minus ab plus b square understand here a and a cancel y divided by we get here minus a square minus ab plus 2ab into a by b equal 1 divided by a by b into b minus a and b by a into a plus b minus b by a into a will be minus b और माइनस साइन इन दोनों के बीच आएगी तो माइनस एंड माइनस हियर प्लस माइनस a plus b. Simplify this. Here 2b square here minus ab plus check this minus b by a into minus 2ab 2b square and here minus plus minus ab minus b square. This will be minus b square since minus minus plus और माइनस साइन इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बीच आएगी so this minus ab minus b square. Here 2b square minus b square will be x divided by b square minus ab b square minus ab equal y divided by here b and b cancel 2a square minus a square minus ab and here 1 by b minus a. Next
एक बार एक्स बाई बी स्क्वायर माइनस ए बी को 1 बाई बी माइनस ए के इक्वल करते हैं और इसके बाद y डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी को 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए के इक्वल करते हैं और यहाँ फाइंड करते हैं x इक्वल here take common b into b minus a divide by this b minus a and y equal take common a here we may write a minus b divided by b minus a means minus into a minus b. Here b minus a cancel and here a minus b cancel. So we get value of x equal b and value of y equal a divided by minus 1 minus a. This is answer. Next, see question number 10. Question number 10 is given here. A square by x minus b square by y equal 0 and a square b by x plus ab square by y equal a plus b where given x y is not equal 0 means x y 0 के इक्वल नहीं है, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 given equation a square by x minus b square by y equal 0 and second equation a square b divided by x plus ab square divided by y is equal to a plus b where ab is not equal 0. ab 0 नहीं है मीन्स यदि ab की वैल्यू 0 फाइंड होती है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे since here given ab is not equal 0. We may write given equation as a square by x minus b square by y plus 0 equal 0 and here let 1 by x equal capital X and 1 by y equal capital Y for changing this equation in form ax plus by plus c equal 0. इस इक्वेशन को a square b by x plus ab square by y minus a plus b equal 0 लिख सकते हैं। Here let 1 by x equal capital X and 1 by y equal capital Y. We may write given equation a square capital X minus b square capital Y plus 0 equal 0
and a square b capital X plus ab square capital Y minus a plus b equal 0. Now here we may write by cross multiplication method. Capital X divided by minus b square ab square and here 0 minus a plus b equal capital Y divided by 0 minus a plus b 0 minus a plus b and this a square b equal 1 divided by a square b and minus b square ab square minus b square ab square. Here 2 cross multiply we may write this x divided by minus into minus will be plus ab square plus bq ab square plus bq minus here ab square into 0 will be 0 equal y divided by here 0 into a square b will be 0 and minus plus a cube plus a square b equal 1 divided by here a cube b square plus b cube a square. Simplify this. We will get value of capital X and capital Y. We may write here capital X divided by ab square plus b cube and here take common b square. We may write here a plus b equal y divided by here take common a square then we get here also a plus b equal 1 divided by a cube b square plus b cube a square here take common a square b square then we get here a plus b. Here we get capital X equal b square a plus b divided by a square b square into a plus b. ये इसके इक्वल करते हैं और इसे इसके इक्वल लिखते हैं. We get here y equal a square into a plus b
डिवाइड बाई a square b square into a plus b. Here this cancel, a square also cancel, and here this cancel, b square also cancel. So we get here capital X equal 1 by a square and capital Y equal 1 by b square. But we let x equal 1 by x and y equal 1 by y. 1 by x equal 1 by a square, and here we may write 1 by small y equal 1 by b square. So we get the value of x equal a square and value of y equal b square. This is answer. Next, I will tell you question related application of linear equations, रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। बच्चों, कभी कभी कुछ व्यवहारिक प्रश्न इस प्रकार गिवन होते हैं कि उन्हें पढ़ करके हम लीनियर इक्वेशन पेयर फाइंड कर सकते हैं। और जो लीनियर इक्वेशन पेयर फाइंड होंगे उन्हें किसी भी मेथड से, जितने मेथड जान चुके हैं लीनियर इक्वेशन पेयर को सॉल्व करने के, उनमें से किसी भी मेथड से जो लीनियर इक्वेशन फाइंड किए हुए हैं क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व करते हैं और उन्हीं लीनियर इक्वेशन पेयर को सॉल्व करने पर प्रश्न का सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। Here you see exercise number 3.5a. Exercise 3.5a. Here given question first, कोई NCERT प्रश्न। ये सभी क्वेश्चन जो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ये एक्सरसाइज 3.5a में गिवन है और NCERT क्वेश्चन के अंतर्गत गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन हियर, एक छात्रावास के मासिक व्यय का जो मंथली एक्सपेंस है उसका एक पार्ट नियत है, एक भाग नियत है, मीन्स कांस्टेंट है, अचल है, वो नहीं चेंज होता है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। दिस इज एक्सरसाइज 3.5a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए देने होते हैं, जबकि एक दूसरे विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए रुपया 1180 देने होते हैं। तब नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। माना नियत व्यय x रुपया
तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, पहली शर्तानुसार एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो ए का नियत व्यय x रुपया होगा और 20 दिन भोजन का जो मूल्य होगा, क्योंकि एक दिन भोजन का मूल्य हमने y रुपया सपोज किया है, इसलिए 20 दिन में भोजन का कुल मूल्य 20 इंटू y 20y होगा और नियत व्यय और भोजन का खर्च ये दोनों ऐड करके छात्रावास को देना होगा इसे। और यहाँ गिवन है क्वेश्चन में टोटल 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए देने होते हैं विद्यार्थी ए को, इसलिए ये जो खर्च आया है ये इक्वल होगा 1000। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन से द्वितीय शर्तानुसार विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, तो उसका जो कांस्टेंट है खर्च नियत व्यय है वो x ही होगा, लेकिन 26 दिन में इसे 26y रुपए भोजन के लिए देने होंगे और सब मिलाकर छात्रावास को x प्लस 26y रुपया देना होगा। बट यहाँ गिवन है विद्यार्थी बी को टोटल 1180 रुपया देना होता है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बच्चों यहाँ हमें 2 इक्वेशन फाइंड हो चुकी हैं। अब ये इक्वेशंस को हम चाहे जिस मेथड से हल करना आपको सरल लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x और y की वैल्यू फाइंड होगी वही नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य होगा। फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 20y equal 1000 and x plus 26 y equal 1180. This is first equation and this is second equation. I solve these equations by elimination method. So subtract equation second from first. Here sign will be minus, here minus and here also minus. This cancel. Here will be minus 6y equal minus 180. So we get here y equal minus 180 divided by minus 6. This will be 30. So value of y equal 30 और यही प्रतिदिन भोजन का मूल्य है, मीन्स 30 रुपया प्रतिदिन भोजन का मूल्य होगा। Put this value, put the value of
y in equation. First we may write here x plus 20 into y means 30 equal 1000. Here x equal 1000 minus 20 into 30 will be 600. So 1000 minus 600 will be 400. This is the value of x. So नियत व्यय इक्वल 400 रुपया 400 रुपीज एंड प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य इक्वल 30 रुपया. दिस इज आंसर. तो बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन को रीड करके लीनियर इक्वेशन पेयर फाइंड करते हैं और वो लीनियर इक्वेशन पेयर जो फाइंड हुए हैं उन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व करके जो वेरिएबल माने हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी और जब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई तो जिस वेरिएबल को जो माने थे उसका मान वही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आई रीड दिस क्वेश्चन. यश की एक परीक्षा में 40 अंक आए. जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई. मीन्स माइनस मार्किंग है. यहाँ यदि इनकरेक्ट आंसर दिए गए हैं तो उनके लिए 1 अंक की कटौती होगी प्रत्येक के लिए. यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो वो 50 अंक ला पाता. तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे ये फाइंड करना है. यहाँ इस क्वेश्चन से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन थे और ये भी फाइंड कर सकते हैं कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं और कितने क्वेश्चन के गलत आंसर दिए हैं. सी क्वेश्चन नंबर 3. माना परीक्षा में कुल x प्रश्न थे तथा यहाँ ये मान लेते हैं कि जो परीक्षार्थी है वो y क्वेश्चन सही किया है तथा परीक्षार्थी द्वारा दिए गए सही उत्तर सही प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी द्वारा दिए गए सही प्रश्नों का उत्तर ऐसा मत लिखो तथा परीक्षार्थी ने y प्रश्नों का सही उत्तर दिया है. y प्रश्नों का सही
उत्तर दिया है। तो यहाँ ये क्लियर है, जब y प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, टोटल x प्रश्न थे, तो कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? x माइनस y प्रश्नों का। और हम पहली कंडीशन से लिख सकते हैं यहाँ, बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्तानुसार y क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है तो इसके लिए 40 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हुए हैं। और अशुद्ध उत्तर मीन्स जो प्रश्न का उत्तर गलत हो गया है उसके लिए 1 अंक दिए गए हैं। तो y क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है और एक सही उत्तर के लिए 3 अंक गिवन है, तो टोटल y क्वेश्चन के लिए कुल मार्क्स इसे 3y मिलेंगे। और x माइनस y क्वेश्चन गलत कर दिया है, इसलिए x माइनस y इंटू 1 मार्क्स इसके माइनस हो जाएंगे। जो सभी सही प्रश्नों पर मार्क्स मिले हैं उसमें से x माइनस y इंटू 1 मार्क ये माइनस हो जाएंगे और टोटल 3y माइनस x माइनस y इंटू 1 मार्क्स मिले, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 40 मार्क्स मिले थे। सिंप्लीफाई दिस, वी में राइट 3y माइनस x प्लस y इक्वल 30 एंड 4y माइनस x इक्वल 30। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन से जब एक सही आंसर पर उसे 4 अंक मिलते और इनकरेक्ट आंसर पर 2 अंक कटते, तो इस प्रकार वो 50 अंक ला पाता है। y सही प्रश्नों के उत्तर के लिए इसे y इंटू 4 मीन्स 4y मार्क्स मिलेंगे और जो गलत प्रश्नों के आंसर हैं उनके लिए इसे x माइनस y इंटू 2 मार्क्स कट किए जाएंगे, मीन्स टोटल 4y माइनस x माइनस y इंटू 2 मार्क्स मिलेंगे, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 50 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। सो दिस इक्वल टू 50। सिंप्लीफाई दिस, वी में राइट हियर 4y माइनस 2x प्लस 2y equal 50. Here 4y plus 2y 6y minus 2x equal 50, and this we may write after dividing by 2 we get here 3y minus x equal 25. This is second equation. Here सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 4y माइनस x माइनस 40 इक्वल 0। दिस we may write first equation as 4y minus x minus 40 equal 0, and we may write second equation 3y minus x minus 25 equal 0. This is second equation. Now by cross multiplication method, cross multiplication method,
वी में राइट हियर y, फर्स्ट वेरिएबल को न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में इसकी -1 एंड -30 -25 is equal to y divided by here first variable given y and second variable is x, so we may write here x divided by -30 -25 and 4 3 equal 1 divided by 4 3 minus 1 minus 1 4 3 minus 1 minus 1. Here do cross multiply as we may write y equal, see here, y divided by -1 into -25 25 and -30 -1 will be 30 minus here 25 and here -30 equal x divided by -120 and this plus 100 plus this -120 -30 into 3 -120 into plus 100 is equal to 1 divided by -4 plus 3 -4 plus 3. This we may write y divided by -15 equal x divided by -20 equal 1 divided by -1. So we get y equal -15 divided by -1 and x equal -20 divided by -1. This will be 20 and this will equal to 15. यहाँ क्वेश्चन में फाइंड करना था टोटल प्रश्नों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन who I suppose x, so total number of question equal 20 and correct question is y is equal to 15. इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल x इक्वल टू 20. दिस इज आंसर. बच्चों इस क्वेश्चन में यदि ये पूछे कि कितने प्रश्न गलत हल किए थे छात्र ने तो भी फाइंड कर सकते हैं, कितने प्रश्न सही हल किए थे तो भी फाइंड कर सकते हैं और टोटल कितने प्रश्न थे जैसा कि ये फाइंड कर चुके हैं 20 क्वेश्चन थे. y हमने यहाँ माना था कि y प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इसलिए सही उत्तर कितने प्रश्नों के दिया 15 क्वेश्चन के. सो क्लियर है 20 टोटल क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है. सो 20 माइनस 15 इक्वल 5 क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट है, गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट गिवन है.
क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ जिससे मिस्टेक समझ जाएं। बुक में जो क्वेश्चन ये गिवन है इसमें मिस्टेक है। जितनी कंडीशन गिवन है उतने से हम लीनियर इक्वेशन पेयर फाइंड नहीं कर पाएंगे और तब प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। एक राजमार्ग पर दो स्थान, क्वेश्चन 4, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये दोनों स्थान 100 किलोमीटर दूरी पर हैं और एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार ए से तथा दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। जब वह यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलती हैं। एक दूसरे से 5 आवर्स बाद मिलती हैं। तथा यदि वह विपरीत दिशाओं में चलती हैं। ये कंडीशन नहीं गिवन है, इसे नोट करेंगे सेम। यदि वह विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 आवर के बाद मिलती है। यहाँ दोनों कारों की स्पीड फाइंड करनी है। दोनों कारों की स्पीड चाल प्राप्त कीजिए।
ये क्वेश्चन मिस्टेक को सही करते हुए कंप्लीट मैं लिख दिया हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए। एक राजमार्ग है कोई, ये राजमार्ग है, टू प्लेस हैं ए और बी, जिनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 100 किलोमीटर। दो कारें, एक कार ए से चलती है, सपोज करते हैं इसकी चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, और एक कार बी से इसी दिशा में, यदि ये इस दिशा में चल रही है तो इसी दिशा में सपोज करते हैं इसकी चाल y किलोमीटर प्रति आवर है, चलती है। तो दोनों 5 आवर के बाद सपोज करते हैं ये प्लस सी है, यहां मिलती है। और जब ये अपोजिट साइड में चलती है, मीन्स ए बी की ओर चलता है x किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, और बी y की ओर चलता है y किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो सपोज करते हैं ये D पॉइंट है, यहां दोनों मिलते हैं। अब ये बताइए, यदि एक से जो कार चली है, पहली कार, उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 घंटे बाद ये पॉइंट C है, यहां दोनों कारें मिलती हैं। तो बताइए 5 घंटा में कितनी दूरी कवर करेगी ये कार, पहली कार। देखिए, माना पहली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर व दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब यहां ये ध्यान दीजिए, ए से जो कार चली है वो भी 5 घंटे तक चलती है, और जो बी से कार चली है वो भी 5 घंटे तक चलती है। तब ए द्वारा, ए ना लिख करके, ए तो प्लस है, पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी इक्वल 4 गुना समय, ये जानते हैं, यहां ये फार्मूला यूज करेंगे, दूरी इक्वल 4 गुना समय, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। 5 घंटे में तय दूरी, पहली कार की चाल x माने हुए हैं और 5 घंटे तक चलती है, तो 5x किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसी प्रकार दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, 5 घंटे में तय दूरी इक्वल 5y। अब देखिए, जो स्थान ए से कार चली है वो C तक, C पर दोनों कारें मिलती हैं, जो B से चली है और जो A से चली है, तो कुल दूरी कितना तय करेगी A से C तक, जो कि 5x के इक्वल। और ये जो B से कार चली है, ये B से C तक कुल डिस्टेंस कवर करेगी 5y। टोटल
ए से सी में से बी से सी को माइनस कर दे तो हमें ए बी मिलेगा जो कि 100 किलोमीटर गिवन है। सो बी में राइट हियर 5x minus 5y equal 100. This we may write as x minus y equal 20. Here divide by 5 on both sides. We may write x minus y equal 20. This is first equation. और ये कारें जब भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे से 5 आवर्स बाद मिलती हैं, तथा यदि वह विपरीत दिशाओं में चलती हैं, एक बी की ओर लेकिन बी ए की ओर चलती है, तब ये सपोज किए हैं कि बिंदु डी या स्थान डी है जहां वो दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। तो बताइए 1 घंटे में 1 आवर में पहली कार द्वारा तय दूरी कितना होगी? ये तो मैं पहली शर्त के अनुसार पहला इक्वेशन फाइंड किया। अब यहाँ दूसरी शर्त अनुसार, ये पहली शर्त अनुसार फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, और अब सेकेंड कंडीशन से द्वितीय शर्तानुसार जब वह विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे बाद एक ही स्थान पर होती हैं, अर्थात वह मिलती हैं, वो स्थान डी है। तब स्थान ए से चली कार द्वारा 1 आवर में कवर डिस्टेंस x प्लस y AD प्लस BD, स्थान ए से जो कार चली है उसके द्वारा कवर डिस्टेंस AD होगी, और स्थान बी से जो कार चली हुई है उसके द्वारा कवर डिस्टेंस BD होगी। AD प्लस BD x प्लस y इज इक्वल टू 100 AB who is given 100 किलोमीटर। Understand this step. This is second. Here solve equation first and second by elimination method. X minus y equal 20 and x plus y equal 100. This is first and this is second. इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में ऐड करते हैं और y एलिमिनेट होगा। Here we get 2x equal 120, so x equal 120 divided by 2, this 60, this equal to 60, so x equal 60. Next, put the value of x in any equation first or second. We get y equal, I write this direct, x equal 60, then y equal 30. So पहली कार की चाल 60 किलोमीटर, so पहली कार की चाल मीन्स जो स्थान ए से चली है इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की चाल जो स्थान बी से चली है इक्वल 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। That's all in this video.